Namaste, welcome back to the channel. So today's video is going to be very important for BAMS batches 2021-22 onwards, because these are the batches where NCASM new gazette notification is applied, and recently the first professional BMS, the first new batch, has completed their first professional BMS examinations, and most of the universities have declared the results of the students. Ultimately, after getting the results, so many confusions were raised, both among the students as well as the faculty and even the office members in the institutions. And what was the query? Whether the students are promoted to the next batch or not, depending on how many subjects they have failed. Ultimately, we had to follow the gazette, and I had earlier mentioned regarding the same, and even regarding the odd batch I had made earlier video as well. In that itself I had very clearly mentioned, but still so many comments I received regarding whether odd batch system is there or not. Even some of the comments were received even from faculty, telling that the students who can clear all the papers in the next supplementary will be able to sit with their main batch. So many confusions. Ultimately, NCASM had to come and clarify all these things regarding who are promoted and who are not. So the gazette notification is not so clear. So this means the same, because NCASM had to bring in another notification to clarify the same. So we are going to see that in-depth analysis of this passing or promotion criteria. A to Z questions will be answered in this video. So first thing, there are two sets of results. One is either you are promoted or failed. Second one, in the failed category, there are two things: failed but promoted, and another one is failed and detained. So these are the two categories under which students are going to belong. So we are going to see that in detail. So taking the first professional BMS initially. So as you know, first professional BMS has 5 subjects, and if any student clears all the 5 subjects, and again some students have confusion regarding subject, whether to pass in a subject or individual paper. So I had clearly mentioned in another video, whenever you have a subject with 2 papers, the combined marks will be considered for passing. So in this video, we are going to speak only about subject, not about the paper. So that was already covered. So first professional BMS I have 5 subjects. आपको सबको पता है 5 subjects जो है first professional BMS में होता है. तो out of which, imagine आपको सारे पेपर क्लियर करने का मौका मिला. You have cleared all the papers. कोई इश्यू नहीं है. You are automatically promoted to the second professional BMS. It means after getting the results, you will have a vacation and then come back to the new batch, that is the next professional year, that is second professional BMS. But imagine you have failed in first professional BMS. Now the question is, how many subjects? If it is 1 or 2, there is a separate set of rules. If it is more than 2, that is 3, 4 or 5, it is a separate set of rules. You will be promoted to second professional BMS if you have failed only in 1 or 2 subjects. Out of 5, either you can fail in 1 subject or 2 subjects. Still, you can sit with your batchmates in second professional BMS. Means you can attend all the classes of second professional BMS. Whereas, if you have failed in 3, 4 or 5, all the 5 subjects, it means you are failed and detained. What does this detention mean? It means you are not promoted to the second professional BMS. It means you are not actually allowed to sit with the first professional BMS, your batchmates. Your name will not be there in the attendance register. Your name will not be added there because you are yet to get that promoted status. You are now failed and detained state, having this status. आपको समझ में आ गया होगा. 1 या 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं. आप अपने बैच के साथ ही सेकंड प्रोफेशनल BMS क्लासेस अटेंड कर सकते हैं शुरू से ही. अगर 3, 4 या 5 सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट फेल आ जाता है तो आपको सेकंड प्रोफेशनल BMS में जाना नहीं है. तो योर कॉलेज जो ऑफिस है वहां पर आपका नाम जो है सेकंड प्रोफेशनल BMS में नहीं रखा जाएगा. इस रूल के अनुसार आपको रखा जाएगा जब आपका स्टेटस जो है प्रमोट हो जाएगा. यहां पर आप प्रमोटेड नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है. तो इसका क्या क्या असर होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वो हम देखने वाले.
फर्स्टली मान लीजिए आप फेल्ड है 1 और 2 सब्जेक्ट में लेकिन प्रमोटेड है, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप अपने बैचमेट्स के साथ बीएमएस सेकंड प्रोफेशनल अटेंड करेंगे एंड आपके बैचमेट्स के साथ ही आप सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम दे पाएंगे। देयर इज नो इशू, उसमें कोई डिले नहीं होगा। एट द एंड ऑफ बीएमएस आप अपने बैचमेट्स के साथ ही बाहर आ सकते हैं। इमेजिन आप वो 1 या 2 सब्जेक्ट को अगले बार आपने कवर कर लिया तो कोई इशू नहीं, आप अपने बैचमेट्स के साथ ही बीएमएस कंप्लीट करने वाले। बस आपके फर्स्ट प्रोफेशनल मार्क्स कार्ड में आपका अटेम्प्ट रहेगा। इफ यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम इन सेकंड अटेम्प्ट, देयर विल बी सेकंड अटेम्प्ट इन द मार्क शीट। अदरवाइज बीएमएस डिग्री विल बी एट द सेम टाइम। कोई डिले नहीं होगा, 5.5 साल में आप भी बीएमएस डिग्री होल्डर बन जाएंगे जैसे आपके बाकी बैचमेट्स हैं। तो ये मैंने अभी अभी आपको कहा। तो फेल्ड बट प्रमोटेड, आप अपने बैचमेट्स के साथ ही सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस अटेंड करेंगे। सो ये तो ऑलरेडी कवर हो चुका है। तो आप अपने बैचमेट्स के साथ बैठेंगे क्लास में, एट द सेम टाइम एग्जाम भी उनके साथ ही लेंगे। तो अगले जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा जो 6 महीने में होगा, सो यू टेक दैट एग्जाम, 1 और 2 सब्जेक्ट्स क्लियर देम। उसमें भी अगर फेल हो गए तो 6 महीने बाद दोबारा एग्जाम आ जाएगा सेकंड सप्लीमेंट्री, व्हिच इज योर थर्ड अटेम्प्ट। यू कैन क्लियर दोस 2 पेपर्स इन द थर्ड अटेम्प्ट, दैट इज सेकंड सप्लीमेंट्री। वो भी आप जैसे पढ़ाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। सो आप अपने बैचमेट्स के साथ सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस अटेंड करेंगे। नाउ द सेकंड केस, दिस इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंट डेज द स्टूडेंट्स कंफ्यूजन, डिटेन्ड वाला स्टेटस। जो 3, 4 या 5 सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं वो है फेल्ड बट डिटेन्ड स्टेटस वाले। तो उनका रूल क्या रहेगा, हमेशा के लिए बीएमएस जो है 6 महीने लेट हो जाएगा। इस बीएमएस विल बी डिलेड बाय 6 months by default. It means is second professional BMS is not yet started after the first professional BMS result. तो उनको क्या करना है, he should not or she should not sit with their batchmates immediately. मान लीजिए आपके सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस क्लासेस स्टार्ट हो गए, सो ऑफिशियली यू आर नॉट अलाउड टू सिट विद द सेम बैच। अनऑफिशियली आपके कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूट वाले अलाउ कर सकते हैं, दैट इज नॉट एन इश्यू। ऑफिशियली आपका नाम रजिस्टर में नहीं होगा, which means your official second professional BMS is not yet started. So that thing you have to keep in mind. What you have to do? Take the supplementary within 6 months. अगर मान लीजिए 3 में फेल हो गए तो बिल्कुल अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। 6 months के अंदर जो एग्जाम आएगा कोशिश कीजिए कि उसी में सारे पेपर्स क्लियर हो जाए, 3, 4 और 5 जो भी है। मेक श्योर यू क्लियर ऑल द पेपर्स इन द सप्लीमेंट्री, फर्स्ट सप्लीमेंट्री, दैट इज योर सेकंड अटेम्प्ट। उसमें फेल हो गए कोई दिक्कत नहीं, सेकंड सप्लीमेंट्री दैट इज योर थर्ड अटेम्प्ट, उसमें आप क्लियर कर दीजिए। तो वो आपके पढ़ाई के ऊपर डिपेंड। सो अल्टीमेटली सप्लीमेंट्रीज के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, यू हैव टू क्लियर ऑल दोस। बट आफ्टर सम टाइम आपके बैचमेट्स का जो एग्जाम आएगा सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस का, उनके साथ आप नहीं बैठ सकते। यू आर नॉट अलाउड टू सिट विथ योर मेन बैच इवन इफ यू क्लियर ऑल दी सब्जेक्ट्स, फेल सब्जेक्ट्स इन 1 अटेम्प्ट। इमेजिन यू गॉट द रिजल्ट्स नाउ, You failed in 3 subjects, 6 months के बाद आपने supplementary exam देखा, supplementary exams दिए, after that you cleared all the 3 subjects, means your first professional BMS is cleared. Are you allowed to sit with your main batch for the second professional BMS exam? No. By default, you are not allowed to sit with your second professional BMS for the examination of second professional BMS. तो मान लीजिए 6 महीने supplementary में आपने clear कर दिया सारे papers, not even 1 or 2, all the papers you have to clear. उसके बाद क्या होगा, then you can sit with your मेन बैच, जो आपके मेन बैचमेट्स हैं क्लास में बैठ सकते हैं। यू कैन सिट इन देयर क्लास, लिसन टू द लेक्चर्स। ऑफिशियली आपका नाम ऐड हो जाएगा रजिस्टर में, मींस आपके बैचमेट्स को ऑलरेडी 6 महीने से शुरू हो गया, आपका नाम ऐड हो जाएगा 6 महीने के बाद। सो एट द एंड ऑफ 1.5 years योर बैचमेट्स हैव कंप्लीटेड 1.5 years, बट यू हैव कंप्लीटेड ओनली 1 year. सो रिमेनिंग 6 months you will have to attend the batch that is your junior batch. 6 months क्लास आपको जूनियर्स के साथ बैठना पड़ेगा। सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन इन थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस। जब ऐसे सिचुएशन आएगा तो अगेन सेकंड ईयर में वो 6 महीने दोबारा लेट हो गया, तो थर्ड ईयर के 1 year अपने बैचमेट के साथ बैठेगा या बैठेगी, एंड अगेन 6 months जो है अपने जूनियर के साथ बैठेंगे। यही सिचुएशन आगे बढ़ने वाला है। एंड आफ्टर 1.5 years ऑफ देयर लाइक प्रॉपर 1.5 years क्लासेस, वो एग्जाम दे पाएंगे सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस एग्जाम। रिमेंबर फर्स्ट प्रोफेशनल के पेपर्स क्लियर हो जाना चाहिए। इमेजिन फर्स्ट सप्लीमेंट्री में आपने सारे क्लियर नहीं किया तो सेकंड सप्लीमेंट्री आपको देना पड़ा, then what happens, then your main batch is only 6 months before second professional exam. You can sit with them for 6 months, but after that you have 1 more year, you have to sit with your juniors. Ultimately आपको जो 1.5 साल है वो खत्म होना चाहिए। उसके बाद जो भी एग्जाम आएगा, मेन आ जाए या सप्लीमेंट्री आ जाए, जो भी चल रहा है, you will have to give the exam of second professional BMS after 1.5 years of classes. आप किसके साथ कितने दिन बैठेंगे depends on your preparation. So ultimately आपका जो सेकंड प्रोफेशनल एग्जाम है तो इस तरह से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा।
सो देन इमेजिन थर्ड सप्लीमेंट्री में आपने क्लियर कर दिया. इमेजिन 2 सप्लीमेंट्री, विच मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में वैसे फेल है, सेकंड में भी फेल हो गए, थर्ड में भी फेल हो गए, फोर्थ में अगर आपने क्लियर कर दिया, सो इट मीन्स यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम विथ योर जूनियर बैच. आपके जूनियर्स के साथ आपने फर्स्ट ईयर का सारे क्लियर कर दिया. सो जूनियर्स के साथ ही आपको सारे बीएमएस आगे वाला जो टर्म है उनके साथ ही बैठना पड़ेगा. यू हैव टू सिट विद देम फॉर द एंटायर सेकंड एंड थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप. सो if your second attempt is cleared, okay, you will be almost only 6 months late. Third attempt, you will be 1 year late. Fourth attempt अगर आप clear कर रहे हो तो you will be 1.5 years late, which means you are almost equal to, or you are equal to your junior batch. So it is like that. So this is in relation to first professional BMS. वैसे ही होगा second professional. अभी एक ही batch second professional में है. So this video is for the importance they should be giving for second as well. So that's why I am continuing, even though only first BMS is notification is out. I am continuing and explaining all the professional BMS in detail. So second professional BMS में आपके 6 subject हैं. You have 6 subjects. So if you are promoted without any condition, it means you have cleared all the 6 papers. So that is obvious. तो again यहाँ पर भी वही status होगा. 1 or 2 subjects failed, you can sit with your main batch. 3, 4, 5, 6 subjects में अगर आप fail हैं, so it means you are into odd batch. This status is called as odd batch. आपने सुने होंगे odd batch. What is odd batch? Odd batch means failed category but detained category, not the promoted category. Failed but detained. So imagine you have cleared all the first year subjects in one attempt. In second year you failed. How many subjects? If it is 1 or 2, it is okay. You can manage and you can sit with your main batch for the second professional exam. But in second BMS, if you have failed in 3, 4 or 5 or 6 subjects, it means you are in odd batch again. So you will be again 6 months late. अगर 6 सब्जेक्ट्स फेल है, पास है या प्रमोटेड है, फेल बट प्रमोटेड है, तो आपका कोई डिले नहीं होगा. बट ऑड बैच में अगर आप चले गए, इट मींस अगेन 6 मंथ्स लेट हो जाएंगे. सो अगेन रूल्स विल बी द सेम. इफ यू आर इन ऑड बैच, यू कैनॉट सिट विद योर थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस बैचमेट्स. सेकंड ईयर के बाद तुरंत वो थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस में जाएंगे. द क्लासेस विल स्टार्ट ऑफिशियली. योर नेम विल नॉट बी एडेड when you fail in more than 2 subjects, which means 3, 4, 5 or 6, which means when you are in odd batch in second professional BMS. I think it is clear. जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में ऑड बैच में है वो तो वैसे डिले चल रहा है, ये अलग बात है. अब मैं बात कर रहा हूँ सेकंड में अगर आपका फर्स्ट टाइम ऑड बैच में आ गया तब भी आपका 6 महीने लेट होने वाला है. सो दिस ऑड बैच विल कम अगेन एंड अगेन एवरी ईयर. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. ट्राई टू क्लियर ऑल द सब्जेक्ट्स एट वंस. और अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो 4 सब्जेक्ट्स में फोकस देना ही है. 1-2 में अगर फेल हो गए तो अगले बार क्लियर कर सकते हैं ताकि आपका डिले ना हो जाए बीएमएस. So again the rules will be the same. Again supplementary exam आता रहेगा. He has to clear, she has to clear those exams. जो odd batch वाले हैं अगर 6 महीने में खत्म कर दिए तो again rule will be the same. 1 year अपने बैचमेट्स के साथ बैठेंगे, 6 महीने दूसरे जूनियर्स के साथ बैठेंगे. They will give the exam. अगर 2 बार सप्लीमेंट्री दिए तो 6 महीने अपने बैचमेट्स के साथ बैठेंगे, 1 year जूनियर्स के साथ बैठेंगे. 3 में अगर क्लियर कर दिए तो अपने जूनियर्स के साथ ही वो आगे बढ़ेंगे. दिस इज द स्टेटस इन सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस. अल्टीमेटली थर्ड प्रोफेशनल एग्जाम जो बैच है, आई मीन जो क्लासेस हैं, तभी शुरू होगा. नाउ दिस इज इन रिलेशन टू फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस. अल्टीमेटली थर्ड प्रोफेशनल बीएमएस के लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है. until and unless you have cleared all the subjects of first and second professional BMS, you are not allowed to write the exam of third professional BMS. Means मान लीजिए आपने सारे क्लासेस अटेंड की, you have attended all the classes. Means imagine you have cleared all the subjects in first professional BMS. सेकेंड प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट बैक हो गई, फेल हो गई. सो एक से कोई दिक्कत नहीं, आप प्रमोटेड हैं. सो यू हैव अटेंडेड क्लासेस विथ योर बैचमेट कंप्लीटली. 1.5 ईयर फाइनल ईयर भी आपने खत्म कर दिए, लेकिन आपको वो एक सब्जेक्ट था अभी भी रह गया. या तो आपने दोबारा फेल हो गए होंगे, और एल्स you may not have given the supplementary exam. Something happened, you may not have cleared that. So एक भी सब्जेक्ट अगर आपका रह गया फर्स्ट एंड सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस में, you are not allowed to take the third professional BMS examination. यहाँ पर क्लास में अटेंड करने की बात नहीं हो रही है, उसके लिए तो रूल्स हमने ऑलरेडी बता दिए. Here is talking about, the notification is talking about whether you can take the exam of third professional BMS. Rule is all subjects including the electives. Electives कैसे? फर्स्ट प्रोफेशनल में 3, सेकंड में 3, थर्ड में 3. 9 तो आप कंप्लीट कर ही देंगे, ये मुझे पता है. बाकी वो सब्जेक्ट वाली जो बात है, 5 in first professional and 6 in second professional, all 11 subjects should be cleared. Then only you can take the exam of
third professional BMS. That is one important rule for third professional BMS. Internship में पहुंचेंगे only if you have cleared all the subjects of third professional BMS. Ultimately बात ये है कि when you start preparing for final year exam, don't miss any opportunity to study or get clinical knowledge, because एक subject में भी अगर आप fail हैं in third professional 6 months डिले हो जाएगा, because internship शुरू नहीं होगी. आप बहुत सारे चैप्टर्स या बुक्स पढ़े होंगे, यू माइट बी वेरी गुड स्टूडेंट फर्स्ट से लेकर लास्ट तक, बट थर्ड प्रोफेशनल में कहीं ना कहीं आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो आप फेल हो गए, फिर भी आपका इंटर्नशिप लेट होगा, बिकॉज थर्ड प्रोफेशनल में एक भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं होने से आपका इंटर्नशिप शुरू नहीं होगा. दिस इज इंपॉर्टेंट. दैट इज वाई यू शुड ऑलवेज टेक केयर इन फाइनल ईयर. बाकी फर्स्ट सेकेंड में थोड़ा बहुत ऑप्शन है, यू कैन बैकअप, बट फाइनल में कोई ऑप्शन नहीं है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन इन रिलेशन टू इंटर्नशिप. अभी आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, how many attempts can I take? How many attempts can I take? Can I take 10 attempts per paper? Can I take 6 attempts per paper? So general rule जो लिखा है आपके BMS joining से लेकर, means starting with the date of joining of BMS up to 10 years, you should have completed all the BMS papers, which means थर्ड का एग्जाम तभी होगा जब फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, ये तो बात पक्की है, और थर्ड का अलग से आपको डिटेल में देना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है? whenever you have failed in first year one paper, you can give that first year paper along with second. That is right, okay. बट जब तक फर्स्ट सेकंड कंप्लीट नहीं होगा थर्ड तो आप दे ही नहीं पाएंगे. सो थर्ड वाला आप इंडिपेंडेंटली देंगे. When a student says I am writing third professional BMS exam, it means automatically they have cleared all the first and second year paper, second professional papers. So 10 साल के अंदर आपका 3 प्रोफेशनल BMS के सब्जेक्ट्स खत्म हो जाना चाहिए, मींस क्लियर हो जाना चाहिए. 5 सब्जेक्ट्स इन फर्स्ट पेपर, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट प्रोफेशनल, 6 सब्जेक्ट्स इन सेकंड प्रोफेशनल एंड 8 सब्जेक्ट्स इन थर्ड प्रोफेशनल. सो अल्टीमेटली जो बनेगा 19 सब्जेक्ट्स हैं, 19 सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाना चाहिए विद इन 10 ईयर्स. तो कुल मिलाकर इसके हिसाब से आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 अटेम्प्ट मिलेंगी, इंक्लूडिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट. अगर इंक्लूडिंग फर्स्ट अटेम्प्ट काउंट करेंगे तो आपका और 2-3 मौका मिलेगा हर एक सब्जेक्ट में, अदरवाइज विल बी लैगिंग बिहाइंड. अगर 10 साल के अंदर आपका इंटर्नशिप शुरू नहीं हुआ, इट मींस यू आर नॉट एलिजिबल टू कंटिन्यू इन बीएमएस, योर एडमिशन विल बी कैंसिल्ड. कुछ एक्सेप्शन होगा, वो एनसीएसएम बाद में डिसाइड करेगा, बट रूल्स के हिसाब से आजकल स्ट्रिक्ट चल रहा है. तो 10 साल के अंदर अगर आपका बीएमएस में कोई भी सब्जेक्ट रह गया, सो यू हैव टू कैंसिल योर बीएमएस रजिस्ट्रेशन, दैट इज एडमिशन. सो इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल. दिस इज इंपॉर्टेंट. So one important thing is there is no separate class for odd batch. No college is forced to take special classes for odd batch students. No odd batch student can claim special class during his preparation time. No, he or she has to manage on her own or his own. Only thing is attendance में कौन कब नाम चढ़ेगा वो डिपेंड करता है जब आपका प्रमोशन होगा. तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगा. So कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आपके मन में अभी भी क्वेश्चन होगा. फर्स्ट प्रोफेशनल बीएमएस के बाद वन स्टूडेंट हैज फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स. नाउ कैन ही अटेंड क्लासेस विद सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस? यस, क्योंकि प्रमोट हो चुका है. फेल्ड है बट प्रमोटेड है, ऑड बैच नहीं. कैन ही राइट एग्जाम विद देयर बैचमेट्स? यस, क्योंकि ऑड बैच है, आई मीन ऑड बैच नहीं है, प्रमोटेड है. साथ ही साथ 1-2-3 अटेम्प्ट के अंदर ये 2 सब्जेक्ट भी उनको क्लियर कर देना है. दिस इज व्हाट ही हैज टू टेक केयर और शी हैज टू टेक केयर. सिमिलरली अनदर एग्जांपल, सम स्टूडेंट हैज फेल्ड इन 3 सब्जेक्ट्स. कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, संस्कृत हो गया, पदार्थ विज्ञान हो गया, संहिता अध्ययन हो गया, रचना हो गया, क्रिया हो गई, एनी सब्जेक्ट्स. सो आर दे एबल टू अटेंड second professional BMS examination? I mean the main classes? No, because they are in odd batch. हमेशा के लिए 6 महीने उनका लेट एग्जाम चलेगा, BMS वैसे डिले होगी. सो आप ये आपको क्लियर हो गया होगा. सिमिलरली इन सेकंड प्रोफेशनल BMS, ये तो फर्स्ट का था पहले जो एग्जांपल्स. अगर सेकंड प्रोफेशनल बीएमएस पे 2 पेपर में फेल्ड है, ऑड बैच नहीं है, सो दे कैन सिट इन देयर मेन बैच फॉर क्लासेस. एग्जाम भी उनके साथ ही दे सकते हैं. बीच में 2 सब्जेक्ट जो रह गया उसको सप्लीमेंट्री में क्लियर कर देना. वैसे ही अगर 3 सब्जेक्ट्स में अगर फेल हो जाते हैं, सो ऑब्वियसली दे आर इन ऑड बैच, सो दे कैन नॉट सिट विद द मेन बैच ऑफ बीएमएस. दे हैव टू सिट विद देयर जूनियर्स फॉर सम टाइम, डिपेंडिंग ऑन व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर. अगर फाइनल ईयर बीएमएस में, फाइनल प्रोफेशनल बीएमएस एक भी सब्जेक्ट फेल हो गए, सो डेफिनेटली दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द इंटर्नशिप. जैसे हम टाइम की बात कर रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल 1/11/2023, सो इस साल का बैच जो है 22-23 वाला बैच, दे हैव जॉइंड ऑन 1st of November.
2023। अगर मान लीजिए 1 नवंबर 2033 तक अगर इंटर्नशिप शुरू नहीं हुआ, so then the student has to withdraw the admission will be cancelled। 10 साल के अंदर उनको इंटर्नशिप शुरू कर देनी। so this is in relation to the maximum time duration। so अगर इंटर्नशिप मिलाएंगे तो 11 years हो जाएंगे। so basically the time period is 5.5 years। if you take this 10 years time with 1 year internship, तो मैक्सिमम 11 इयर्स के अंदर आपका इंटर्नशिप भी खत्म हो जाना चाहिए। एग्जाम क्लियर होना है 10 साल के अंदर, सारे एग्जाम्स, इंटर्नशिप खत्म हो जाना है 11 इयर्स। अगर सही पढ़ने वाला है तो तब तक उनका पीजी भी हो जाएगा, कुछ लोग पीएचडी भी अब तो ऑलमोस्ट खत्म करने आ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा रेगुलर रहना ही ठीक है। बाकी जो फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं या आप खुद ही कर रहे होंगे, सो यू हैव टू टेक केयर दैट दीज आर द टाइम्स और टाइम शेड्यूल्स which you are going to which are going to be affecting in your lives। so many years are going to be lost। so make sure you are in the right space, you are in the right mind of frame of mindset to study BMS। साथ ही साथ कोई भी जो रूमर्स आते हैं या सीनियर्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा, some teachers are spreading some wrong information, some higher position teachers themselves। इसी से साफ पता चलता है कि टीचर्स को भी इतना नॉलेज नहीं है जो NCSM ने जारी की है। तो मेरा ये सुझाव रहेगा, सारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिस वाले हैं, टीचर्स हैं, इवन स्टूडेंट्स हैं, एक बार जो गैजेट है अच्छे से पढ़ लें ताकि आगे जाके कोई भी स्टूडेंट का क्वेरी है तो उसको अच्छे से बोल सके, सो दैट स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी कंफ्यूजन। सो दिस इज माय सजेशन। द लिंक फॉर डाउनलोडिंग द गैजेट नोटिफिकेशन विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन and related videos you can see here, these are also available in the description। so I hope this video cleared all of your doubts। until next time, thank you।